Good morning, everyone. Myself, Abhinarayan Singh, Assistant Professor, Department of Computer Science Engineering, Artificial Intelligence from IIMT College of Engineering, Greater Noida. I will discuss today multi-threading in Java. Most important features in Java is multi-threading, and Java support multi-threading programming. Our presentation outline is multitasking, how to achieve multitasking, and how to correlate multi-threading to multitasking. And introduction to multi-threading, Java thread model, life cycle of threads, and how to create thread in Java. First upon all, we discuss multitasking. Multitasking nothing but in an operating system, two or more programs run concurrently is called multitasking, and multi-threading is in a single program perform two or more tasks simultaneously is called multi-threading. Multi-threading is a special form of multitasking. Multitasking achieved in two ways, process-based and thread-based. Process-based multitasking is called multitasking, and thread-based multitasking is multi-threading. Process-based multitasking in an operating system run two or more programs simultaneously is called process-based multitasking. For example, we can run in a window simultaneously like media player, calculator, text editor, and etc. But in multi-threading, in a single program, two or more tasks performed simultaneously is called thread-based multitasking or multi-threading. For example, in a program, we can see one program like VLC Media Player. In VLC Media Player, there are several tasks like image frame, sound, audio, and process bar, time. Various tasks run in simultaneously in a program. It's called thread-based multitasking or multi-threading. And next, we discuss multi-threading, and our presentation is multi-threading in Java. So in multi-threading, discuss in briefly, next slide. Multi-threading, Java support multi-threading programming. Multi-threading program is contain two or more part or task run simultaneously is called multi-threading, and each task consider as a thread. Each task consider as a thread. Each thread define separate path of execution. Multi-threading is special form of multitasking. In Java, multi-threading achieved by by two-way, by through the thread class, and second one is runnable interface. Thread class and runnable interface is pre-built abstract class and interface.
we can see that in next slide, thread models in Java. One thread can push without stopping any part of program. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर एक थ्रेड स्टॉप हो जाए तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट या पुश नहीं होगा, अदर जो थ्रेड हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। इन मल्टी थ्रेडिंग अलाउज anonymous loops to sleep for a second between each frame without causing the whole system. मल्टी थ्रेडिंग अलाउ करती है कि अगर एक थ्रेड पुश हो जाए तो हमारा होल जो प्रोग्राम है वो वर्क करता रहे। वो एक सेकेंड के लिए थ्रेड रुकी हुई है, पुश हुई है, फिर दोबारा वो रिज्यूम होगी थ्रेड और एग्जीक्यूट होगी। जितने भी टास्क है उनको एक एक थ्रेड अटैच किया रहता है और वो थ्रेड सेकेंड मिली सेकेंड के लिए पुश होती है, स्लिप होती है और अवेक होती है। फिर अभी लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड जब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, तो उसमें इसको अच्छे तरीके से देखेंगे कि कैसे पुश हो रही है, कैसे स्लिप हो रही है और कैसे रिज्यूम हो रही है। When a thread block in Java program, अगर थ्रेड को ब्लॉक किया जाए जावा प्रोग्राम में तो ये ओनली थ्रेड पुश होगी। ब्लॉक का मतलब पुश होगी, वो रनिंग स्टेट से हटकर वेटिंग स्टेट में आ जाएगी और वेटिंग स्टेट से फिर से रनिंग स्टेट में जाएगी। एंड अदर ऑल थ्रेड इज रन, वन थ्रेड इज पुश but other all thread is run simultaneously. And thread also discuss the 5 point of thread important point. A thread can be running, it can be ready to run as soon as, अगर हमारा जो थ्रेड है वो रनिंग स्टेट में है इसका मतलब कि वो रन के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है। एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, केवल एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है। ए रनिंग थ्रेड कैन बी सस्पेंडेड, अगर एक रनिंग थ्रेड सस्पेंड हो गई है या it means which temporarily suspended its active, it means कि one thread is suspended, तो ये temporarily suspended है, ये फिर से resume होगी। A suspended thread can be resumed, जो suspended thread होगी वो always resume होगी। अगर वही थ्रेड ब्लॉक भी है, सस्पेंडेड है, ब्लॉक्ड है, वेटिंग है, ये सारी जो थ्रेड है वो रिज्यूम होगी, फिर से एग्जीक्यूट होगी। बट ए थ्रेड इज टर्मिनेटेड एट एनी टाइम, बट अगर थ्रेड टर्मिनेट हो गई तो वो थ्रेड रिज्यूम नहीं हो सकती है, वो परमानेंटली स्टॉप हो जाएगी। अब नेक्स्ट पीपीटी में हम लोग देखेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड कैसे वर्क करती है। हियर शो द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड and 5 state in life cycle of thread. First state newborn, second state running, third runnable, fourth blocked, and fifth dead. First upon we discuss newborn state. Newborn state in life cycle of thread, जब हम लोग एक न्यू थ्रेड क्रिएट करते हैं तो वो न्यू बर्न स्टेट में होती है और न्यू बर्न स्टेट में
जैसे ही स्टार्ट मेथड कॉल होता है, जैसे ही हम थ्रेड एक्चुअली थ्रेड बना लिए, बनाने के बाद वो रनिंग स्टेट में नहीं आएगी, वो बन गई है थ्रेड हमारा, और वो रनिंग स्टेट में नहीं आएगी या एक्टिव स्टेट में नहीं आएगी, तो वो न्यू बर्न थ्रेड को एक्टिव स्टेट में ले आने के लिए एक मेथड कॉल करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट मेथड। जैसे ही स्टार्ट मेथड कॉल होता है, तो वो एक्टिव स्टेट में आ जाती है, वो थ्रेड एक्टिव स्टेट में, एक्टिव स्टेट के रनिंग स्टेट में। बट रनिंग स्टेट में वे वेट करती है अपने रनेबल स्टेट में जाने के लिए। रनिंग स्टेट का मतलब होता है कि एग्जीक्यूट के लिए तैयार है, एग्जीक्यूट के लिए थ्रेड तैयार है, लेकिन अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा वो रनिंग स्टेट में। जैसे ही रनेबल स्टेट में जाएगा तो वो थ्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। और ये रनेबल स्टेट में कैसे जाएगा, ये रनिंग स्टेट से रनेबल स्टेट में जाने के लिए एक यील्ड मेथड कॉल किया जाएगा, जिसके थ्रू रनिंग स्टेट से रनेबल स्टेट में वो थ्रेड चली जाएगी और थ्रेड एग्जीक्यूट होगी। इन दो स्टेट को मिलाकर हम लोग बोलते हैं कि थ्रेड एक्टिव स्टेट में है, एक्टिव है, थ्रेड एक्टिव है, डीएक्टिव नहीं है। डीएक्टिव का मतलब कि डेड हो गई, किल हो गया थ्रेड का। अब इस दो स्टेट में जब थ्रेड रहेगी, उसको हम लोग बोलेंगे कि हमारी जो थ्रेड है वो एक्टिव थ्रेड है। अब एक्टिव थ्रेड में अब जैसे न्यू बॉर्न है, न्यू बॉर्न में ही बनाए, स्टार्ट कॉल नहीं किए, उसके बाद ही स्टॉप कॉल दिए, तो वो एक्टिव स्टेट में न जाकर वो कहाँ चली जाएगी, डेड स्टेट में चली जाएगी। इसी तरह जब एक्टिव स्टेट में थ्रेड रहती है, तो उस थ्रेड को हम लोग स्टॉप करेंगे। जैसे ही थ्रेड स्टॉप हो गई, मतलब कि वो थ्रेड टर्मिनेट हो गई और वो डेड स्टेट में चली जाएगी। बट जब एक्टिव स्टेट है, एक्टिव स्टेट से ब्लॉक स्टेट में जाएगी, तो उसमें तीन मेथड कॉल होते हैं, सस्पेंड, स्लीप, वेट। ये आइडियल थ्रेड कहलाती है, नॉट रनेबल, मतलब एग्जीक्यूट नहीं रहेगी, एग्जीक्यूट करने के लिए वेट करेगी। तो ब्लॉक स्टेट में आइडियल थ्रेड वेट करती हैं, अपने एग्जीक्यूशन होने के इंतजार करती हैं कि जब भी उस थ्रेड को रिज्यूम या नोटिफाई किया जाए, तो वो थ्रेड फिर से रनेबल या एक्टिव स्टेट में चली जाएगी। यहाँ देखिए आप लोग, जैसे ही ये एक्टिव थ्रेड है, एक्टिव थ्रेड का काम हुआ, वो एग्जीक्यूट हुआ, और मैं कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करना चाहता हूँ थ्रेड को, तो हम क्या करेंगे, सस्पेंड मेथड करेंगे। अगर स्लिप करना चाहते हैं तो स्लिप मेथड कॉल करेंगे, और वेट कराना चाहते हैं तो वेट मेथड कॉल करेंगे। इन तीनों मेथड को कॉल करने से जो भी एक्टिव थ्रेड होगी, वो आइडियल या नॉन रनेबल स्टेट में चली जाएगी और ब्लॉक स्टेट में चली जाएगी, और वहां वेट करेगी, वहां वेट करेगी। जैसे ही उस थ्रेड को रिज्यूम या नोटिफाई किया जाए, वो थ्रेड फिर से एक्टिव थ्रेड बन जाएगी और रनेबल में चली जाएगी। ब्लॉक स्टेट से भी अगर किसी थ्रेड को स्टॉप किया जाए, तो वो कहाँ जाएगी, डेड स्टेट में चली जाएगी, और वहीं थ्रेड किल हो जाती है और टर्मिनेट हो जाती है, और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना बंद हो जाता है। जितनी भी थ्रेड है, वो सारी थ्रेड जब तक किल ना हो जाए, डेड ना हो जाए, हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा, जब तक कि पूरी की पूरी ऑल थ्रेड किल ना हो जाए। तो ये थी लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, और हम लोग आगे देखेंगे कि एक एक करके कि थ्रेड को कैसे बनाते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए जावा प्रोवाइड करता है, एक थ्रेड क्लास प्रोवाइड करता है और एक रनेबल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये दो तरीके से हम थ्रेड को बना सकते हैं या थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी, यहाँ क्रिएशन ऑफ थ्रेड। वी कैन क्रिएट थ्रेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे। किसी भी एक मेथड से आप थ्रेड क्रिएट कर सकते हो।
फर्स्ट है एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, दूसरा इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। थ्रेड क्लास क्या है, जावा प्रोवाइड करता है, ये प्री बिल्ट क्लास है जो जावा प्रोवाइड करता है। हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करेंगे, और एक्सटेंड करने के बाद थ्रेड क्लास रनेबल इंटरफेस में एक रन मेथड होता है, उसको हम लोग ओवरराइड करते हैं। तो जैसे ही थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करेंगे तो उसके साथ साथ ही रन मेथड को ओवरराइड भी करना पड़ेगा। फर्स्ट point, extending thread class, the first way to create thread is the create new class that extend thread class. This line we can say, first upon we create a normal class, then extend a thread class, then create instance of class, then create instance of child class, and this class must be override the run method. A method is a entry point of the new thread. जब भी थ्रेड बनाएंगे तो वो थ्रेड रन मेथड में, जो भी थ्रेड को काम करना होगा वो रन मेथड के अंदर ही कोड लिखा जाएगा, उसी कोड को एग्जीक्यूट करेगी, वही कोड थ्रेड को अटैच होता है। सेकेंड वे है थ्रेड क्रिएट करने के लिए, इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। रनेबल नेम, इट इज ए इंटरफेस। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे ही इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और इसमें भी रनेबल क्लास में एक मेथड होती है void रन, उसको हम लोग इस रनेबल इंटरफेस जो क्लास बनाएंगे उनको रन मेथड के द्वारा इस थ्रेड को कॉल करेंगे। सिंगल मेथड कॉल रन और फॉर्मेट ऑफ फंक्शन पब्लिक void run. In Java, thread is created in two ways. First, extending thread class. Second, implementing runnable interface. आगे सिंटेक्स देखेंगे इसका, हाउ टू क्रिएट थ्रेड क्लास बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, and how to create thread by implementing runnable interface. First, we create thread by extending thread class. Here is syntax to creating a thread by extend thread class. Here class my thread, it is a normal class. To create a class my thread, it is a normal class. Then each class extend thread class. Thread class is predefined in Java. Pre-creation of thread class in Java. हम लोग जावा में कुछ क्लासेज और इंटरफेस प्री डिफाइन या प्री बिल्ट बना हुआ है, उसको एक्सटेंड करेंगे, उसके मेथड को ओवरराइड करेंगे। Here, a normal class extend the thread class, and then public void run method declare. Here the thread body execution. In a run method, attach a particular thread and execute the program. Here the curly braces, the code of thread execution in a run method, and how to create thread. Thread is created by creating the object of class. Here
Here my thread thr1 object reference is equal to new my thread. Here is creation of object of class. जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं वैसे ही एक थ्रेड हम लोग का क्रिएट हो जाती है। बट ये थ्रेड अपना है। जब भी एक प्रोग्राम बनाते हैं उसमें एटलीस्ट वन थ्रेड होती है इन जावा में, उसको हम लोग बोलते हैं मेन थ्रेड। बट ये जो थ्रेड बना हुआ है वो थ्रेड हम लोगों का बना हुआ है, हम लोगों ने बनाया है। जैसे ही ये मेन थ्रेड है, मेन थ्रेड है, इस मेन थ्रेड को हम लोग डिवाइड करते हैं अपने पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड में। और ये थ्रेड एक प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करती है। T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो जो भी मेन थ्रेड है वो डिवाइड होती है एक छोटे छोटे थ्रेडों में। उस थ्रेड को हम लोग बनाते हैं। और जैसे ये बना हुआ है माई थ्रेड thr1, मतलब ये एक थ्रेड हो गया। ऑब्जेक्ट जो रेफरेंस हुआ वो एक थ्रेड हुआ। बट ये जब जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हम लोग का जो थ्रेड कहाँ होगा, बर्न स्टेट में, न्यू बर्न स्टेट में। जैसे ही बर्न स्टेट में थ्रेड चला गया तो ये वेट करता है स्टार्ट मेथड कॉल करने के लिए। जैसे ही स्टार्ट मेथड हम लोगों को कॉल होता है वो कहाँ चला जाएगा, एक्टिव स्टेट में, एक्टिव थ्रेड में। तो जैसे ही स्टार्ट मेथड कॉल होगा वो एक्टिव स्टेट कहलाएगा। और क्रिएट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जैसे ही ये तो यहीं से हो गया स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड। तो दो तरीके से आप बना सकते हो। एक में तो क्रिएट भी कर रहे हो थ्रेड को, तो थ्रेड को क्रिएट हो जाने के बाद उसको स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे तो वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। लेकिन आप साथ साथ में भी कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो और एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। तो यहाँ न्यू माई थ्रेड क्रिएट हुआ डॉट स्टार्ट। तो ये मेथड जैसे ही कॉल होगा तो हमारा जो थ्रेड है वो रनिंग स्टेट में चला जाएगा, रनेबल में चला जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव थ्रेड। और जैसे ही एक्टिव थ्रेड होगा तो यहाँ से या तो वेटिंग स्टेट में जाएगा, जब तक इसका काम पूरा नहीं होगा वेटिंग स्टेट में जाएगा, फिर वेटिंग से रनेबल में आएगा, एक्टिव स्टेट में, वेटिंग, एक्टिव, वेटिंग, एक्टिव, ये करता रहेगा जब तक का इसका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाए। इसी तरह बहुत सारे थ्रेड बना सकते हैं यहाँ। जैसे इसी लाइन को रिपीट लिखो यहाँ पर thr1 2 3 4 5, तो बहुत सारे थ्रेड बना सकते हैं और रन मेथड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस तरह थ्रेड को और कॉल से कर सकते हैं। अब जैसे ही स्टार्ट मेथड कॉल होता है तो ये हमारा जो प्रोग्राम का रनेबल रन ओवर मेथड होता है जिसको हम लोग ओवरराइड करते हैं, वो कॉल हो जाता है ऑटोमेटिक। तो उसी उसी में ही थ्रेड के लिए जो वर्क होता है वो असाइन होता है और वही एग्जीक्यूट होती है। तो ये पूरा पूरा का पूरा सिंटेक्स है कि थ्रेड को कैसे बनाया जाए और थ्रेड को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे हाउ टू, एग्जाम्पल देखेंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट, हाउ टू इम्प्लीमेंट थ्रेड, how to create thread and how to work thread in Java. Here, extending the thread class example यहाँ पर शो किया गया है। तो फर्स्ट we can say यहाँ पर द थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया गया है और ये जो अपना क्लास बनाया गया है माई थ्रेड वो एक्सटेंड करेगी थ्रेड क्लास को। ये एक फंक्शन है जो मेथड है जो ओवरराइड होता है थ्रेड क्लास से आता है, जिसका नाम है पब्लिक वॉइड रन।
इस रन मेथड में लिखा गया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन दिस थ्रेड इज रनिंग। मतलब एक मैसेज प्रिंट हो कि ये थ्रेड रन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये दिस इज अगर रन कर रही होगी तो ये मैसेज आएगा दिस थ्रेड इज रनिंग। जैसे ही क्लास एंड हुआ, मैंने दूसरा क्लास बनाया थ्रेड ex1। ये क्या काम करता है, इसमें जैसे मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसी में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो माई थ्रेड टी इजकल टू न्यू माई थ्रेड। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर थ्रेड बन गया है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, न्यू बर्न स्टेट में है। ड्यू टू एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास एबव, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया गया है, इस वजह से माई थ्रेड T1 इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे हम लोग। जिस क्लास में रन मेथड होता है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी थ्रेड बनेगी। तो जैसे ही माई थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड लिखा हुआ है, तो मतलब थ्रेड क्रिएट हो गई, लेकिन बर्न स्टेट में है वो, अभी रन स्टेट में नहीं। जैसे ही टी डॉट स्टार्ट मेथड कॉल होगा तो हमारा जो थ्रेड होगा वो कहाँ चला जाएगा, रनिंग स्टेट में चला जाएगा। रनिंग स्टेट से फिर रनेबल में जाएगा, फिर वो वेट स्टेट में जाएगा, फिर एक्टिव स्टेट में आएगा। तो ये लूप चलता रहेगा, एक्टिव स्टेट टू वेट स्टेट। आई कैन कॉल I can call start and this will start। जैसे ही कॉल होगा तो उस किस मेथड को कॉल करेगा, रन मेथड को। तो जैसे ही रन मेथड को कॉल करेगा तो हमारा क्या हो गया, ये जो मैसेज है वो प्रिंट हो गया और थ्रेड का काम खत्म, और थ्रेड क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी इन द मेन और इन द क्लास exe1। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही रन मेथड का काम खत्म हुआ, ये जो भी थ्रेड है वो कहाँ चली जाएगी, स्टॉप में। स्टॉप मेथड कॉल होगा और वो कहाँ चली जाएगी, डाई में किल हो जाएगा। जैसे ही किल होता है थ्रेड का, वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा वहीं पे। सेकेंड मेथड है बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। तो सिंटेक्स देखेंगे हम लोग, आप ये सिंटेक्स है बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। ये नॉर्मल एक क्लास है, क्लास माई थ्रेड, जो इम्प्लीमेंट कर रही है किसको, रनेबल इंटरफेस को। इसमें भी एक मेथड होता है पब्लिक वॉइड रन। सेम टू सेम जैसे ही वहां एक्सटेंड करते थे, यहाँ इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, पब्लिक वॉइड को इम्प्लीमेंट करेंगे। बट इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। जैसे माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पर, माई थ्रेड माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू माई थ्रेड। बस माई ऑब्जेक्ट रिफरेंस को, इस क्लास के ऑब्जेक्ट रिफरेंस को थ्रेड क्लास में पास करेंगे, थ्रेड क्लास में पास करेंगे, तभी वो थ्रेड क्लास, तभी थ्रेड क्रिएट हो। तो यहाँ पर क्रिएट ऑब्जेक्ट बोला गया है, तो माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ पर थ्रेड नहीं क्रिएट हुई, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। जैसे ही थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट रिफरेंस बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे ही ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ आप लोगों का, दूसरा चीज है क्रिएट थ्रेड ऑब्जेक्ट। थ्रेड का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर थ्रेड THR1 इजकल टू न्यू थ्रेड, और इसमें जो पैरामीटर है वो ऊपर वाले माई थ्रेड का जो हम लोग का क्लास का है उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस को पास कर देंगे। फिर यहाँ पर हमारी थ्रेड क्या हुई, क्रिएट हुई। थ्रेड कहाँ हुई, क्रिएट, क्रिएट यहाँ पर हुई। तो थ्रेड इस लाइन को लिखते समय ही थ्रेड क्रिएट हुई और न्यू फॉर्म स्टेट में चली गई। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे, वो कहाँ चली आएगी, एक्टिव थ्रेड बन जाएगी और रनेबल में चली आएगी।
जैसे ही रनेबल में चली आएगी, वो जैसे ही रनेबल में जाएगी वो वॉइड रन मेथड कॉल होगा, और जो भी वॉइड रन मेथड के अंदर कोड होगा वो थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए बना होगा। थ्रेड उस कोड को एग्जीक्यूट करेगी और फिर थ्रेड टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि सिंटेक्स क्या है। बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, और सेकेंड है बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल क्लास। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका कि हाउ टू क्रिएट। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में डिफरेंस है, बाकी सब सेम प्रोसेस, सेम थ्रेड क्रिएट करने के। तो हम लोग देखते हैं अभी सेकेंड एग्जांपल। यहाँ पर देखिए, क्लास माई थ्रेड इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस। रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स किया गया है। ये एक मेथड इसमें रहेगा वाइड रन, जिसको प्रिंट करेगा दिस थ्रेड इज रन। सेम टू सेम जैसे ही है, वहाँ एक्सटेंड थ्रेड था, यहाँ पर इम्प्लीमेंट रनेबल था। तो जैसे ये क्लास बन जाती है, दूसरी क्लास बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखेंगे। जैसे ही थ्रेड का देखिए आप लोग, जैसे ही यहाँ पर एक ही लाइन में लिखा हुआ है, आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा। थ्रेड टी इजकल टू न्यू थ्रेड, ये एक हम लोगों का जो थ्रेड बना हुआ था माई थ्रेड क्लास, उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ऑब्जेक्ट न क्रिएट करके उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस को डायरेक्टली यहाँ पास कर दिया गया है। और जैसे T1 डॉट स्टार्ट करेंगे, हम लोग का रन मेथड कॉल होगा, जो थ्रेड को थ्रेड के लिए जो भी काम होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होकर थ्रेड को किल कर दिया जाएगा। अब हम थोड़ा बहुत समराइज करते हैं हम लोग जो पढ़े थे कि थ्रेड कैसे क्रिएट की जाती है और थ्रेड को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इसका बेनिफिट क्या है। तो मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग का मेन बेनिफिट है सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड प्रोग्राम यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसका मेन फोकस यही है कि हमारा जो सीपीयू है वो खाली ना रहे और हमेशा बिजी रहे, रिसोर्स जो हैं वो खाली ना रहें, वो भी हमेशा बिजी रहें। और इसका मेन बेनिफिट यही है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो फास्ट एग्जीक्यूशन हो, फास्ट वर्क हो, हमारे रिसोर्स हैं सारे ऑक्युपाई हों, और हमारा सीपीयू भी हो वो आइडियल स्टेट में ना रहे, हमेशा एक्टिव स्टेट में रहे। मल्टी थ्रेडिंग का मेन मकसद यही है। तो समराइज करते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। कि सबसे पहले मल्टीटास्किंग क्या होती है। मल्टीटास्किंग वो होती है कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोग्राम या प्रोसेस एक साथ चलती रहे, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग। सेकेंड है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग एक ही प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग अचीव करने के लिए जावा प्रोवाइड करता है, एक क्लास प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्लास को हम लोग थ्रेड क्लास बोलते हैं, इंटरफेस को रनेबल इंटरफेस बोलते हैं। क्लास है तो उसको एक्सटेंड करेंगे, इंटरफेस है तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे ही इम्प्लीमेंट करेंगे रनेबल इंटरफेस को, तो हम लोग एक मेथड को कॉल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक वॉइड रन। और ये रन मेथड रनेबल इंटरफेस का है, जिसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हैं, इसको ओवरराइड करेंगे, रनेबल क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसका यूज करेंगे पब्लिक वॉइड रन। और यही रन मेथड जैसे ही टी डॉट स्टार्ट वर्क होता है, कॉल करते हैं, तो ऑटोमेटिक ये रन मेथड कॉल हो जाता है। और थ्रेड जावा में एक मेन थ्रेड होता है जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट में। तो यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर एक बना हुआ है थ्रेड टी, तो हम लोग का ये एक मेन क्लास होगा। मेन क्लास को एक T1 डिवाइड कर दिया गया है। और इसके बाद आगे थैंक यू यहीं तक।
आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी मेथड है रिज्यूम, स्लीप, फेड, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कैसे वर्क काम करते हैं। थैंक यू।